All right. So चले. basically, what we do in this episode, yeah, overall series में, Mm-hmm. yeah, I just have a few questions for you, but obviously हमारी वाला session थोड़ा सा different होगा. We're just going to talk in sessions Okay. rather than questions. ठीक है? Okay. So first, we're going to have a discussion about education with the lens of creating a leadership, creating a school culture, basically in Okay. school. Fine. Just let me know about is this a process and is it a formal startup or just we are discussing right now? So what we're discussing is leadership's role as a whole. Okay. Fine. कि एक स्कूल कल्चर बनाने में Okay. So, Misha, as per my concern or my point of view, being an educationist and the learner of the education sector, I would love to share that while I have started my career being the student of education, I realized that system is so much diverse. Our Pakistani education culture is very diverse categorized because we have different categories of the curriculums as well. So I realized that if I want that quality education is the right of every child, we must lead from the front being an educationist, and we must get specialization in how to provide that quality education to every child. As our हम्म, constitution says that according to 25A article, that हर बच्चे को right है कि वो quality education हासिल करे. तो being in the system, it was difficult to work with other organizations because we have a lot of plans, lot of things to हम्म, do. So that motivated me to start my own baby and education sector to provide a good quality education to every child. So that's how I guess leadership move in. That we must get the जिसे कहते हैं ना कि मिशेल आप पकड़ें खुद and start leading. And उसके बाद the most important thing is that कि we must not only lead to carry our followers, we must have to develop more leaders like us so that this thing can multiply in a huge mass. So that was, हम्म, I think, my perspective about because everyone is a learner at the right time and everyone is a educationist as well. So be the leader. इन द क्लासरूम कोई हम्म, टीचर है, वो भी एक लीडर है. एक इंस्टीट्यूट रन करने वाला है, वो भी लीडर है. बट व्हाट इज द मेन गोल एंड विजन दैट डिटरमिन्स कि एजुकेशन की क्वालिटी आपको क्या मिलती है. यस परफेक्ट. सो जब स्कूल कल्चर की बात आती है, कौन कौन सा एरियाज हैं जिसमें लीडरशिप को आउटसाइड ऑफ ऑफिसेज भी पार्टिसिपेट करना चाहिए rather than just staying inside or मीशा, मुझे लगता है कि कल्चर के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एथिकल लीडरशिप. बिकॉज हम्म, लीडर्स जो हैं जब वो एथिकली करेक्ट होंगे ना, तो उनको मुझे लगता है कि जो फीलिंग्स हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने स्टूडेंट्स की, अपने स्टेक होल्डर्स, आई मस्ट से कि वो जो स्टेक होल्डर्स होंगे, तो ऑल द स्टेक हम्म, होल्डर्स में पेरेंट्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, आपके वर्कर्स हैं, वो खास तौर पे आपकी टीम है. तो व्हेन द लीडर शुड बी एथिकल, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो डेवलप होता है ना, वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है इन द होल कल्चर. तो एथिक्स की अगर आप बात करते हो, तो एथिक्स के अंदर तो सारी चीजें आ रही है ना, कि आपकी इमोशंस क्या हैं, आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या आ जाती हैं. तो मुझे लगता है कि एक लीडर को एथिकल होना बहुत जरूरी है फॉर द मोटिवेशन ऑफ द स्टाफ, मोटिवेशन और सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स, and designing the culture of the organization. हम्म. जी एग्जैक्टली आई बिलीव दैट टू. बिकॉज इन स्कूल्स मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस है. there are a lot of times that वो प्रोफेशनलिज्म वाली लाइन जो है ना थोड़ी सी it's blurred. Hmm. So ethic की आपने बात की. There are some professional ethics as well that you should really keep in mind when you're dealing with teachers and you're dealing with the whole community. So I really agree Exactly. with your point. Exactly. So what is the role of communication and trust building in leadership? Like, Misha, communication is very key aspect of the leadership because if there is a positive and I think active communication between all the stakeholders, it will mm, bring the trust. Because
अगर वो ब्रिज क्रिएट ही नहीं है ना, कोई लाइजन नहीं है कम्युनिकेशन में बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। मैं बार बार स्टेक होल्डर्स की बात इसलिए करता हूँ कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट कि हम हेड्स जो हैं वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट्स अबाउट द स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट द पेरेंट्स, इट्स अबाउट द कम्युनिटी वर्कर्स। बिकॉज आपका स्कूल, आपका इदारा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह पर मौजूद है उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सो कम्युनिकेशन अगर नहीं है, इफ स्टेक होल्डर्स don't get the chance to communicate positively and freely with the leadership, or leadership is not involved in the active communication with the stakeholders, so मुझे लगता है कि ट्रस्ट जो है ना वो लैक करता रहेगा। और अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो यू मस्ट इंगेज द एक्टिव कम्युनिकेशन और पॉजिटिव कम्युनिकेशन। मतलब मैं ये दो टर्म्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी कि एक्टिव कम्युनिकेशन जो कि जिसके अंदर ब्रिज कंटिन्यूस रहेगा और इजी रहेगा, और प्लस पॉजिटिव कम्युनिकेशन। बिकॉज अगर कोई आपने ब्रिज डेवलप किया उसमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन कंटिन्यूस नहीं है, सो ऑब्वियसली वो आपका लॉन्ग रन नहीं रहेगा। वो टाइमिंग तो होगा, वंस इन अ वाइल आप मुलाकात कर तो रोगे, जिस तरह होता है सेशंस में, कोई पीटीएम्स पर, कोई मीटअप्स पर, तो वो तो हो जाएगा। बट इफ यू आर नॉट हर्ड और वैल्यू नहीं होगा, तो आई मस्ट से कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शायद उस ट्रस्ट को गेन ही नहीं कर पाएंगे। तो वो ट्रस्ट जो है वो एक्टिव कम्युनिकेशन and positive communication between all the stakeholders with the leaders, it is the key for building the trust. Right. So we were having this discussion as well with like हमारा सेशन हुआ था एक लीडरशिप पार्टनरशिप पर. Do you think that the leadership in Pakistan keep that open communication going? अनफॉर्चुनेटली वेरी लिमिटेड। मैं इसको बहुत नैरो भी नहीं करूंगा, बट लिमिटेड है। इट्स नॉट कि Mhm. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, और या मैं ऐसा कहूँ कि बहुत ज्यादा है। इट्स लिमिटेड एंड डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम टू सिस्टम, वेरी करता है। तो Mhm. होना चाहिए, मेरी सजेशन ये है कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसकी इसके अलग डोमेन्स हैं कि उसके बाद आपके डिसीजन मेकिंग्स पे क्या फर्क पड़ता है, दैट्स अ सेपरेट टॉक। बट यस, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो लीडरशिप्स मस्ट, बिकॉज इफ यू रिमेंबर वन कोर्स अबाउट द लीडरशिप विद डॉक्टर जैसिका, वी Yeah. डिस्कस अबाउट द लिसनिंग लीडरशिप। तो Listening leadership. दैट वाज वेरी अमेजिंग, बिकॉज आफ्टर getting that lecture, when I started listening my team and stakeholders, that changed the scenario of the whole culture of my organization as well. And after Mhm. that, the adaptive leadership, because when you are a good listener, then you will adapt the things according to that. So it is all based on the trust building and the communication, and the bridge between the stakeholders and the leadership. हम्म. तो उसी में वी हैड अ बिट ऑफ डिस्कशन वही डॉक्टर जेसिका के साथ ही कि Exactly. इट लीडरशिप इज नॉट अबाउट कि जो लिसनिंग लीडरशिप में भी कुछ नेगेटिव कॉन्स थे, Mm-hmm. लाइक बिकम अ पीस मेकर, वो सारा चीजें आ जाती हैं. सो आई बिलीव दैट लीडरशिप शुड हैव क्वालिटीज, बेस्ट क्वालिटीज फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ लीडरशिप. लाइक Exactly. अडेप्टिव भी होना, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी अ लिसनर. तो आई फील लाइक अभी लीडरशिप के लिए वो काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो Mm-hmm. इसके अलावा अगर जो नेगेटिविटी नजर आती है लीडरशिप में Hmm. कम्युनिकेशन के तौर पे, कौन सी, लाइक व्हाट आर दे? मुझे लगता है कि जो अनहर्ड चीजें हैं, या एक ईगो है, या एक फियर है, और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, दीज ऑल लेड टू जो है ना वो नेगेटिव थिंग्स जाता है। बिकॉज अगर आपके स्टेक होल्डर्स दे गेट द फेयर कि जी हम लोग हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द लीडर्स, और हाउ वी कम्युनिकेट आवर इश्यूज टू द लीडर, वो उसमें हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर सेकेंडली अनहर्ड की एक फीलिंग है। आपको पता है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी में एक बहुत ज्यादा ये डिस्करेजमेंट है कि जी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी अगर हमने बात कर भी दी। ओपन टॉक मीटअप्स होते हैं, ओपन टाउन हॉल्स होते हैं, और उसमें आप जाकर सजेशंस या देते हो, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं आते, तो आपको अनहर्ड फीलिंग आती है। और फिर ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और तो फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और जो आपके पास अनहर्ड वैल्यूज हैं, ये मुझे लगता है कि ये बड़े गैप्स क्रिएट कर रहे होते हैं लीडरशिप और स्टेक होल्डर्स के दरमियान में। सो व्हाट डू यू थिंक द लीडरशिप शुड डू टू गेट एग्जैक्टली दैट इस कम्युनिकेशन? मुझे लगता है कि व्हाट आई प्रैक्टिस कि इसके अंदर आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ना एक रिवाइवल करना पड़ेगा लीडर्स को, कि वो सेपरेटली अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटअप्स प्लान करें,
और सबसे पहले एक टाइम फेज बनाएं जिसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 months में आप अपने स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट सेशंस के साथ सिर्फ लिसन करें, सिर्फ उनको सुने एंड कलेक्ट द डाटा अबाउट देयर फीलिंग्स रिगार्डिंग योर लीडरशिप। तो जब तक आपके पास वो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आएंगे, थर्ड पार्टी फैक्ट्स नहीं चाहिए आपको, एग्जैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द दैट स्टेक होल्डर चाहिए। अगर आप एजुकेशनल लीडर हैं तो उसमें आपके स्टेक होल्डर सेपरेट हैं, अगर आप कॉर्पोरेट के हैं तो उसके अलग हैं। सो एक लीडर को मुझे चलता लगता है कि सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि उसको वो डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा रियल ग्राउंड्स का, कि व्हाट एक्चुअली द स्टेक होल्डर्स फील अबाउट हिज और हर लीडरशिप, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप उनके ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहे। ये फेज वाइज चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, इट विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, और फिर वो अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करें, क्लियर कम्युनिकेशन हो, गैप्स खत्म हो, हेयरिंग हो, कम्युनिकेशन हो, और ट्रस्ट बिल्ड हो, और विजन क्लियर होना चाहिए कि वेयर द गोल मस्ट एंड और कहां लेकर चलना है, देन थिंग्स विल गेट वेरी स्मूथ। तो डिस्कॉर्ड जो है वो सिर्फ आई थिंक टीचर्स और लीडरशिप के दरमियान नहीं आता। नो लाइक नो नो। लीडर्स हैव कोऑर्डिनेटर्स, फिर कोऑर्डिनेटर्स के आगे वाइस प्रिंसिपल्स होती हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ऊपर प्रिंसिपल होता है। हम्म। तो आई थिंक कि कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल के दरमियान भी कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं है, देखो देखिए, जो प्रिंसिपल के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स बता ही नहीं पा रहे होते, बिकॉज उन्होंने आगे आगे जब रिपोर्ट करना है तो उनको अच्छा रिजल्ट शो करना है, और अगर वो हम्म बुरा करेंगे तो ऑब्वियसली लीडरशिप की तरफ से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल नीचे कोऑर्डिनेटर्स पर प्रेशर डालेगा, वो आगे टीचर्स पर प्रेशर डालेगा, तो एवरीवन इज अंडर प्रेशर, और एक ये ऐसा साइकिल चलेगा जो कि सिस्टम तो चल रहा होगा बट उसकी प्रोडक्टिविटी हर्ट हो रही होगी इन द लॉन्ग रन। सो हम्म। क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस फ्रॉम द लास्ट 16 years, आई एम हेडिंग माई इंस्टीट्यूट, तो उसके अंदर तो मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, फ्रॉम द वेरी डाउनफॉल टू द बेटरमेंट प्रोसेस, जो है डेवलपमेंट प्रोसेस। सो इट हैपेंस अ लॉट इन द सिस्टम। सो डू यू थिंक इसमें भी ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए? द प्रॉब्लम्स दैट स्कूल्स फेसिंग, डू यू थिंक एवरीबडी शुड बी इन ऑन इट, कि पता हो सबको कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो वी कैन ऑल कलेक्टिवली गिव यू नो। मिशा, मैं आपको फिर रिकॉल करवाऊंगा फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, एथिकल। बिकॉज देखें, जब आपका हर पर्सन सिंसियर, लॉयल और एथिकली अपने काम को लीड नहीं ना कर रहा होगा, ये गैप क्रिएट होता जाएगा। हम्म आपको पहले वो बताने पड़ेंगे पूरे ट्रेड्स, वैल्यूज के ऑन व्हाट ग्राउंड्स हम इस चीज को प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप फिर ये कम्युनिकेशन देखिए, अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है, फॉर एग्जांपल यू सेड कि जी ओपन कम्युनिकेशन है, ओपन कम्युनिकेशन में अगर वो फेयर ही नहीं है और वो एथिकल ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि फिर आपके रिजल्ट्स कैसे प्रोडक्टिव होंगे। सो आप ये देखें कि अल्टीमेटली कम्युनिकेशन ओनली इज नॉट द सोल्यूशन ना। कम्युनिकेशन के साथ आप किन ग्राउंड्स पर बात कर रहे हैं और किन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, एंड क्या वो मैच कर रहा है आपके फाइनल गोल्स के साथ, आपके विजन के साथ, तो देन इट विल बी प्रोडक्टिव। अदरवाइज वो खाली ओपन डिस्कशन, गपशप हो जाएगी, बैठेंगे एंड दे स्पेंड द टाइम, तो उसके बाद नीचे जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटीज हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। हम्म। या आई रियली बिलीव दैट एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान में तो रिसर्च का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है। तो स्कूल्स में तो बिल्कुल ही हम्म। आई डोंट थिंक कि एनीबडी रियली प्रेजेंट्स ट्रू फैक्ट्स। तो आई थिंक वी शुड रियली वर्क ऑन दैट। एग्जैक्टली। प्रिंसिपल्स को भी, कोऑर्डिनेटर्स को भी, टीचर्स को भी ट्रेन करना चाहिए एज रिसर्चर्स, कि हम्म। आपके डेटा को आपको आना चाहिए, लाइक हाउ टू डायसेक्ट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन कम थ्रू दैट। एग्जैक्टली। Okay. Yeah, so let's come to supporting the teachers and then supporting coordinators. So again, communication के अलावा, what can principals do with coordinators के they can support the coordinators, या again coordinators teachers को किस तरह support कर सकती हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें लीडरशिप में ना आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर के अंदर मोस्टली जो अच्छे इदारे भी हैं वहाँ पर लिमिटेशंस इतनी है, डॉक्यूमेंटेशन इतनी है, और इतनी डिमांड्स हैं कि वहाँ पर जो इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करने होते हैं, फ्रीडम ऑफ द डिसीजन मेकिंग है, ये बड़ा लिमिटेड रहता है। तो Right. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिचुएशन अराइजेस,
तो उसको पहले रिपोर्ट करना, उसको लिखना, देन उसको हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाना, फिर डिसीजन का इंतजार करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। उसकी जो असल एसेंस है ना वो मिस हो जाता है। सो आई मस्ट से कि कोऑर्डिनेटर्स एज पर जो भी है उनको इतना फ्रीडम दें, दे कैन टेक द डिसीजंस एंड देन आफ्टर दैट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट कि ओके ये सिचुएशन थी, मुझे लगा कि ये ठीक है, और फिर उसको बैक करना कि यस यू आर राइट, और उसको अप्रिशिएट करना कि यस यू डिड अ फैंटाबुलस जॉब, कि ये ऐसा होना चाहिए था, रादर नहीं व्हाई डिडंट यू आस्क मी, व्हाई डिडंट यू वेट फॉर दैट। बिकॉज बहुत सारे सिचुएशंस रियल ग्राउंड पे कोऑर्डिनेटर्स के लिए, अब लीडर्स कितना, अगर कैंपसेस चल रहे हैं तो एक लीडर एक कैंपस में कितनी देर मौजूद है, या ईमेल वो कितनी देर बाद पढ़ेगा, या वो व्हाट्सएप कितनी देर बाद देखेगा, तो उस वक्त तक जो इंटेंसिटी होगी ना सिचुएशन की वो चेंज हो चुकी होगी। इसी तरह वो कोऑर्डिनेटर्स नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को, टीचर्स को इतना इंडिपेंडेंट करें क्लासरूम के अंदर कि वो डिसीजंस ले सकें रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स। देखें कोई भी इंक्वायरी आती है, कोई भी इशू आता है, तो वो आपको पता है कि हमारे यहाँ इतनी लिमिटेशंस होगी, अनफॉर्चुनेटली यू आर टीचर एज वेल, और अच्छे इदारे में आप पढ़ा रहे हो, अब यू आर नॉट फ्री टू टेक डिसीजंस बिकॉज यू हैव टू रिपोर्ट फर्स्ट टू द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर ने इसके बाद वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, एंड देन टू द हायर मैनेजमेंट। तो आप सोचें कि वो जो डिसीजंस आने हैं चार पांच लोगों के अलग पर्सपेक्टिव में, तो वो जो रियल ग्राउंड का इशू टीचर फेस कर रहा था वो कहेगा ओके यार फाइन, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, आई जस्ट रिपोर्ट टू दैट, खत्म हो गई कहानी। सो उसका इंप्रेशन कहाँ गया? टीचर को भी एक लिमिटेड फ्रीडम दें और ताकि वो इनोवेटिव आइडियाज करे, फिर देन कोऑर्डिनेटर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत उनकी बाउंड्रीज में फ्रीडम दें, एंड देन टू द प्रिंसिपल्स एंड देन टू द लीडर्स। ये तब होगा जब फ्रीक्वेंटली आप अपने विजन को डिटरमिन करके और अपने गोल्स को सेट करके एक ट्रैक के ऊपर सारी टीम होगी, देन दिस विल हैपन। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं एक सिचुएशन पे कैसे डिसीजंस लेता हूं, मेरा थीम क्या है, तो अगर मेरे कोऑर्डिनेटर को ये पता है कि इस सिचुएशन में सर होते तो वो ऐसा डिसीजन लेते, तो वो भी ऐसी सिचुएशंस में कम से कम अपने मुताबिक उतनी स्पेस में ले लेती या ले लेते। इसी तरह टीचर्स भी, तो एक कल्चर पूरा डेवलप होता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, बिकॉज एवरीवन थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूशन, नॉट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अभी क्या होता है, टीचर अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, यार मेरे से कुछ गलत हुआ तो मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा, तो आप Yes. इनसिक्योरिटी चेक करें ना, तो अगर वो नहीं होगा तो आप बताएं कि फिर हल कैसे निकलेगा। सो ये एक पूरा साइकिल क्रिएट आई गेस होना बहुत जरूरी है। This is exactly true. आपने जैसे बात की कि I'm a teacher, so I do go through all of this. There are times when the teachers know best एग्जैक्टली the solution कि क्या हो सकता है इस बच्चे का. But exactly. then there are a lot of barriers. Again, communications में mostly है जी। because personally I would say कि I cannot talk to my leadership candidly. And it's not just me. I'm not हम्म saying कि leadership का कसूर है या it's the problem with the leadership. हम्म I think हम्म it's the system. हम्म Overall, पाकिस्तान में ही ये सिस्टम बन गया हुआ है कि you cannot talk to someone who is like more experienced than you या जो भी आपको लगता है कि आप नहीं कुछ कह सकते because you might get a pushback. Again, pressure उन पर भी होता है. They also हम्म have pressure of the principal. अब principal के ऊपर भी pressure होता है आगे से. हम्म। तो I think कि the biggest gap we are facing is these barriers को हम लोग identify नहीं कर पा रहे. अच्छा मीशा, मैं इस पे ऐड ऑन करूं, बिफोर आई गेस बैक 3 इयर्स बैक, मैं एक डायरेक्टर पोजीशन पर था अपने स्कूल के अंदर, और मैं सिर्फ ओकेजनली आया करता था, और मैंने प्रिंसिपल रखी हुई थी, काफ़ी एक्सपीरियंस, और एक सिस्टम चल रहा था और बहुत अच्छा था। बट ये जो आप बता रहे हैं बैरियर्स, ये हम आइडिया नहीं था। आफ्टर डूइंग माई डिग्री एंड कोर्सेज रिलेटेड टू लीडरशिप, एंड जब मैंने ये लर्न किया तो आई इन्वॉल्व माई सिस्टम, और बिलीव करें कि मेरे ऑफिस का दरवाजा हर वक्त खुला होता है। मुझे 3 साल लगे हैं, 3 साल के अंदर मेरा पूरा सिस्टम इतना ट्रांसफॉर्म हुआ है कि मेरा टीचर, मेरा गेटमैन, मेरे पेरेंट्स, मेरा बच्चा, दे आर फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। उनको पता है मेरी स्लॉट्स का, और उनका अच्छा ये नहीं है कि वो एनी टाइम, मतलब उनका एक हायरार्की, हर एक को अपने रूल्स पता चले। इट टुक टाइम फॉर 3 इयर्स, मुझे लगे 3 साल, बट इसकी वजह से मैंने ट्रांसफॉर्म होते देखा है। सो आई एम सेटिंग अ मॉडल फॉर दैट रियल ग्राउंड्स पर, कि वाकई इसका बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट जो है वो डेवलप हो रहा होता है अगर लीडरशिप इस चीज को समझे। देखिए लीडरशिप क्या चाहती है, मतलब आप लॉन्ग रन में देखें अपना सिस्टम स्ट्रांग चाहती है। तो मुझे नहीं समझ आता कि वाई वो इतने सारे बैरियर्स रखते हैं, और उसके बाद भी समझ रहे होते हैं कि जी नहीं, अच्छा पे भी कर रहे हैं, अच्छा स्टेटस भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बैरियर्स उसकी इमोशंस को तो नहीं ना सेटिस्फाई कर रहा, उसकी वो जो प्रेस्टीज है टीचर की या कोऑर्डिनेटर को नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो मुझे लगता है उसको करने के लिए ये एक चेंज जब डेवलप होगी ना,
तो मैंने चूंकि उसको फील किया, आई एम फीलिंग दैट, और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग दैट, कि मुझे लीडरशिप के साथ साथ वो एंगेजमेंट का जो हम्म मजा आता है उससे सीखने को बहुत मिलता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उसके बाद उनकी एक अलग फीलिंग्स मेरे साथ बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिससे अल्टीमेट मेरा स्कूल, मेरा इदारा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। हम्म। सो फोन पे भी थोड़ा सा बात की थी आपने कि फोन्स व्हाट्सएप वगैरह पर। सो अगेन उसमें भी टीचर्स आर मैसेज्ड ऑन व्हाट्सएप, जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो भी व्हाट्सएप पे आ रही है। एंड द मिनट somebody sees you on the phone they're like instantly क्या फोन पे क्यों है। जी। एंड you're like I'm communicating with you on the phone, अभी आप अपना फोन देखें, मैंने आपको भी मैसेज किया। हम्म। So this is also another barrier that teachers are facing right now कि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक में आ हम्म। गया, and then your mindset is not towards that कि maybe if there is फिर अगर रिप्लाई ना करो then you have हम्म। problems। हम्म। And then the second barrier that we are facing the most is parents। पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट टीचर्स आर मेंट टू इग्नोर, हम्म। लाइक स्टूडेंट बिहेवियर हो गया हम्म। या डिफरेंट चीजें हो गई। तो हम्म। डू यू एग्री कि ऐसा होता है इन योर इंस्टीट्यूट एज वेल या कोई? बिल्कुल मीशा, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वी फेस दैट अ लॉट इन आवर कल्चर एज वेल और आवर सिस्टम एज वेल। बट हमने इसके लिए क्या किया है, मैंने रियलाइज किया है कि आप खुद से सोचें कि ईमेल्स या आपके जो व्हाट्सएप हैं उस पर आप इमोशंस या फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं देख पाते, कि आपने जो मैसेज किया है वो हम्म टोन, वो वर्ड्स, वो तो सिर्फ डिपेंडेंट है वर्ड्स, आपकी वर्ड्स की इंटेंसिटी क्या है, उससे आप परसीव कर रहे होते हैं कि जी ये इस फेज में आपको ये जवाब दे रहा है या दे रही है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा हम्म ट्रांसफॉर्म किया कि मैंने 15 मिनट्स का टॉक टाइम जो है वो रखना शुरू किया अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ डेली बेसिस पर। इट टुक मतलब 1.5 साल हो गया है, 1.5 ईयर, जिसमें हम लोग डेली बेस पर 15 मिनट बैठते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय का कप हो और हमने बात करनी है। इसी तरह टीचर्स के साथ मंथली फोर्टनाइटली मिलना शुरू किया। इवन फॉर द लास्ट 6 मंथ मैं क्या कर रहा हूँ कि ओपन टॉक मीटअप के नाम से मैंने पेरेंट्स को इनवाइट करना शुरू किया ग्रेड वाइज। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस तो जा रहे थे, किसी के पास नेट नहीं, किसी ने मोबाइल टाइम पे नहीं देखा, उस मैसेज की जो इंटेंसिटी थी उसको उस टाइम पर नहीं इंकॉर्पोरेट कर सके। तो जब वो फिजिकली मिलना शुरू हुए, एक्सप्रेसिव हुए, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ने मुझे कुछ बताया, मेरे मैनेजमेंट को बताया, उनकी फीलिंग्स जब हर्ड होना शुरू हुई, तो एक बिल्कुल ही चेंज एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया। आप बिलीव करें कि शुरू शुरू में अगर 100 पीपल को मैं इनवाइट कर रहा हूं तो उनमें से 10 लोग आ रहे हैं। नाउ इफ आई इनवाइट 100 पीपल तो 110 लोग आ रहे हैं, बिकॉज उनके साथ उनकी मैसेज आ रही है, बच्चा या कोई और फैमिली मेंबर आए, जाके गपशप लगाते हैं। उसने इतना चेंज कल्चर कर दिया, बिकॉज पहले वो व्हाट्सएप भी कर सकते, अब संडे को बुला रहे हैं नाश्ते के लिए, आ जाएं, सब आ गए। उसके बाद आप उनको रात को बुला रहे हैं चाय पर कि जी आ जाएं, डिस्कशन करनी है। अच्छा, डिस्कशन क्या है? जस्ट टू लिसन देम कि आप अपने बच्चे को कैसा देख रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। इसी तरह टीचर्स को वीक में अभी जैसा समर ब्रेक चल रहा है तो उनको एंगेज कर लिया और उनको कहा कि अच्छा चलें, ये चीजें हैं, इस पर मिलकर बैठकर काम करते हैं। दे आर सो हैप्पी। और जितना जहां जहां जैसे इसको अकोमोडेट करना है वो करें, ताकि वो कल को आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें जब आपको जरूरत है उनको। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम्म आप ये जो फिजिकल आपकी होती है ना मुलाकात, ये अपनी सोशल से या मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क क्रिएट कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्डिंग अ ट्रस्ट और लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी एस्पेक्ट भी है। हम्म। सो फॉर लीडरशिप प्रोफेशनल बाउंड्री अक्सर कहते हैं, लाइक व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री और ओपन कम्युनिकेशन, सो द लीडर वुड बी लाइक कि प्रोफेशनल बाउंड्री होनी चाहिए। व्हाट इज दैट प्रोफेशनल बाउंड्री? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीशा, क्योंकि आप इतनी दोस्ती पे नहीं चले जाते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी मीटिंग में हैं, पब्लिक सेमिनार में हैं, किसी इनॉग्रेशन पर हैं, तो वहां पर भी आपका टीचर, आपका स्टूडेंट इतना कैजुअल हो जाए कि वो लीडरशिप के साथ जाकर उतना फ्रैंक हो, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट होगा। बेशक इन हाउस वो डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, उसके ऑफिस में आप बेशक उससे फ्रैंकली मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट दे रहे हैं कि वो अपनी कोई भी शेयरिंग। बट वही बात फिर आ जाएगी वो एथिकल की, कि एक एथिकल बाउंड्री होना जरूरी है कि व्हाट आर द वर्ड्स, व्हाट आर द जेस्चर्स
यू आर प्रेजेंटिंग और जब आप मिल रहे हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है आप जितना पॉजिटिव लीडर होगा, एक रोल मॉडल होगा, और वो उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने तुम या तू नहीं कह रहा ना, आप कह रहे हैं सबको, आप खड़े होकर मिल रहे हैं सबको, आप इतना इजी रह रहे हैं कि वो आपसे दिल की बात जरूर कर सकता है, बट एक अदब के उस पे रहते हुए। सो मुझे लगता है कि जब आप ये एथिकल बाउंड्रीज को सेट कर लेते हैं, तो फिर ट्रस्ट तो रहता ही रहता है, इजी कम्युनिकेशन तो होती है, बट वो जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिकॉज हर पोजीशन, क्योंकि ये भी एक ट्रेनिंग है कि आपने पब्लिक प्लेस पे कैसे मिलना है, आपने सेमिनार्स पे कैसे मिलना है, अपने क्लासरूम में कैसे मिलना है। अगर तो आप बच्चों के साथ बिल्कुल फ्री हो गए हैं, तो व्हेन यू विजिट द क्लासरूम्स, तो वहां पर तो वो बिल्कुल ही कैजुअल हो जाएंगे, आपसे आकर सब हैंड शेक कर रहे हैं क्लास में, वो मिल ही नहीं रहे, तो वो कहाँ गई फिर प्रोफेशनलिज्म। टीचर्स के साथ आप फ्रैंकली बेशक आउटसाइड डिनर्स कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लेकिन आप किसी मीटिंग में, जब आपका आपका स्टाफ है, ये वर्कशॉप ले रहे हैं, वहां पर टीचर आपको ऐसे कैजुअली मीटअप कर रहा है, तो आपकी वो प्रोफेशनलिज्म बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये वो सारी जो चेन है, वो इट इज अराउंड द एथिकल, के वो बाउंड्रीज, उसमें आपकी ट्रेनिंग है कि आप बिल्कुल इजी रहें, बट उसमें ये प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो रखें, ताकि आपका कम्युनिकेशन गैप भी ना आए, एथिक्स भी वायलेट ना हो रहे हो, और प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन रह जाए। तो ये भी एक ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा अहम हिस्सा होगा। राइट। सो फर्दरमोर, आप व्हाट वुड यू सजेस्ट इन कम्युनिकेशन में अगर बात आती है, लाइक when we are trying to have a conversation about certain topic like issues, हम्म। तो एक प्रोफेशनल बाउंड्री की अगर बात आती है तो देन ऑब्वियसली पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। हम्म। So, are the leaders supposed to support every single person? वो भी तो थोड़ा difficult हो जाता है ना, to accommodate हम्म। every single person. हम्म। So हम्म। how do you, make a balance उस चीज में अच्छा, as a उसमें leader? उसमें ये होता है कि आप एवरी टाइम अकोमोडेटिंग नहीं होते हैं, यू आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल एंड नॉट ऑलवेज हम्म। अकोमोडेटिंग। तो आप क्या करते हैं कि आप इंटेंसिटी चेक करते हैं कि हाउ मच नीड दैट पर्सन हैव, वो फाइनेंशियल है, वो इमोशनल है, वो कोई लीव से रिलेटेड है, वो कोई भी कल्चरल बैरियर्स के हवाले से है। लिसन टू देम फर्स्ट, उसको इंक्वायर करें, और उसके रियल ग्राउंड फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा करें, एंड देन डिसाइड। और जब आप ये तीन प्रोसेस करने के बाद, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई, नॉट ऑलवेज अवेलेबल, नॉट ऑलवेज अकोमोडेटिंग, देयर मस्ट हम्म। बी सर्टेन लिमिटेशंस एंड टाइम स्पैन्स जिसके अंदर आप होंगे, बिकॉज आपकी पर्सनल भी तो लाइफ है ना, आप पर्सनल भी उन चीजों को ले रहे हैं। सो वो जब आप एवरी टाइम अकोमोडेटिंग हो जाएंगे फॉर एवरीवन, तो वही प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं कि वो रेज होना शुरू हो जाएगी, मतलब राइज हो जाएगी, और फिर उसके लिए अकोमोडेट करना फॉर द लॉन्ग रन इशू होगा। ये हमें फेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा, अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पेरेंट्स से इवन रिलेटेड। तो आपको कुछ पैटर्न सेट करने पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि पीपल नो अबाउट द पैटर्न्स, वो उसको फिर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फी इशू है किसी पेरेंट्स का, एंड दे वांट कि जी सर सॉरी, दिस मंथ इट इज नॉट पॉसिबल, हम नेक्स्ट के साथ टू जमा कराएंगे। अब आप पैटर्न देखते हैं कि ये बंदा हर दफा ऐसा कर रहा है, इफ यू अकोमोडेट एब्रप्टली कि ओके फाइन ठीक है आप कर दें, लेकिन अब क्या होगा, वो अगली दफा भी आएगा, वो अगली दफा भी आएगा। हम्म। सो वन टाइम यू हैव टू से नो सर, दिस इज नॉट द टाइम वी कैन अकोमोडेट, यू हैव टू डू दिस, आप इसको सबमिट कराएं, ओके। तो वो क्या होगा, उसको समझ आ जाएगा, नॉट ऑलवेज अकोमोडेटिंग, नॉट ऑलवेज जो है ना वो अलाउड कर रहे हैं, तो उनका पैटर्न, तो इसलिए उनको भी फिर एथिक्स आना शुरू हो जाएंगे कि नहीं, हमें सिर्फ जरूरत के टाइम पर ही जाना है। तो इसके लिए सेट करना पड़ता है पैटर्न, और एक अच्छी लीडरशिप जो है वो इसको देख रही होती है, उसको रियलाइज भी हो जाता है, और जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी पता चल जाता है कि ये कैसा बंदा हम्म। है या कैसा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब आफ्टर आवर्स की थोड़ी बात करते हैं, लाइक ड्यूरिंग आफ्टर आवर्स, हम्म। आपको घर गए हैं अभी, एंड देन यू आर गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द लीडरशिप के ये काम था, ये आपने अब करना है, ये वो, सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ सीरियसली। आई हैव सेट द टाइमिंग्स फॉर द टीचर्स। फॉर एग्जांपल, आफ्टरनून में मैंने अपनी मैनेजमेंट के लिए, अपनी टीम के लिए टाइम रखा हुआ है 4 to 6 का, कि जी 4 to 6 के दरमियान में अगर आपको कोई भी कॉल्स मैसेज आती हैं, यू हैव टू आंसर, अदरवाइज यू आर नॉट बाउंड टू आंसर दैट। मतलब हम्म। ये मुझे भी पता है, मेरे कोऑर्डिनेटर्स को भी पता है, और मेरे टीचर्स को भी पता है, और पेरेंट्स को भी हमने ये चीज़ बता दी है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई इंटेंसिटी, इतनी शिद्दत वाली कोई सिचुएशन आ गई है, बहुत अब्रप्ट है, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि वो हमने नंबर रखा हुआ ऑफिशियल, और उससे कॉल जाएगी, तो फिर कॉल जाएगी, फिर मैसेज या ईमेल नहीं है, फिर कॉल जाएगी, वो बताया जाएगा मैटर, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन होगा। रिसेंटली वी हैड दैट सिचुएशन कि हमें 9th 10th के हवाले से अपने स्कूल के अंदर कुछ मेकअप क्लासेस से हवाले से मैनेज करना था, बिकॉज समर ब्रेक आ गया और 10th क्लास की क्लासेस ही नहीं हुई, सिलेबस बहुत ज्यादा है।
तो समर ब्रेक चल रहा था, टीचर्स भी ऑफ पर थे, तो अभी उनकी समर ब्रेक खत्म होने में टाइम था। तो अभी नए नोटिफिकेशंस आए, उसके अकॉर्डिंगली आई हैड टू रश थ्रू द डिसीजंस। तो मैंने अपने उस ऑफिशियल ग्रुप के अंदर मैसेज भेजा कि जी ये इंटेंसिटी है, अलर्ट भेजा, वेन एवर एंड एवरी वन फ्री तो रिस्पॉन्ड। वो एक टाइम लैप्स बता दिया कि 24 आवर्स में आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। अब वो 24 आवर में सबके कंसर्न कंसर्न आ गया, और उसके बाद हमने सबका कंसेंट लेने के बाद उसको फाइनलाइज किया, एंड देन वी टॉक टू एवरी टीचर, और सबको इनवाइट किया। और उसमें ये नहीं रखा कि अगर कोई बिजी है, कोई फैमिली के साथ कहीं पर बिजी है, कहीं पर गया हुआ है, वो नहीं, बाकी जितने अवेलेबल है वो सब आ जाए। वो आए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग के सबको भेज दिया। तो अब हम उस सिचुएशन में बिफोर टाइम, एंड फिर हमने उसके लिए लंच अरेंज किया स्टाफ के लिए, और उनको फिर सबसे पहले अप्रिशिएट किया कि जी आपने अपने ब्रेक के दौरान में एक अर्जेंसी के अंदर आपको आना पड़ा। सो वो जो आपके जेस्चर्स हैं, वो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। उससे क्या हुआ कि टीचर्स ने रियलाइज किया, एंड देन वी कॉल्ड एवरी पेरेंट्स ऑन संडे। तो आप बिलीव करें कि मोर देन 100 पेरेंट्स केम फॉर दैट, कि वाकई कोई मतलब चीज इंपॉर्टेंट थी। और उससे बहुत बेनिफिट हुआ कि उससे एंगेजमेंट हमारी इतनी पॉजिटिव हुई और इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट गया। तो दैट चेंज द मतलब सिनेरियो फॉर एस एज वेल। ये तो बड़ा मतलब डिफरेंट है, क्योंकि जिस पर सिचुएशंस नहीं आएंगी ना, आप उसके अकॉर्डिंगली लर्न नहीं कर सकते। आइडियलिस्टिक तो आप सारी बातें कर सकते हैं, बिकॉज रियल ग्राउंड में सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होती है। तो मुझे लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन रखना है उसके लिए, और हाई अलर्ट्स वाली चीजों के लिए तो ये भी फिर वही है, इट यू हैव टू डेवलप दैट कल्चर कि एवरीवन मस्ट बी ट्रेन्ड कि किस सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, देन थिंग्स विल गेट बेटर। Right. I totally agree because sometimes I have really hard time making that line. वो बाउंड्री लाइन होती है ना, जी। when I get message whether it's like at 9 o'clock at 10 o'clock मेरे अंदर कुछ चीज होती है कि यार जवाब देना है. I think that's what spoiled it for me. हम्म। हम्म। क्योंकि तो once you do that, like I was asking somebody, I was like कि यार इस चीज को कैसे मैं खत्म करूं, like I have to answer, and अगर मैं आंसर ना भी दूं तो if I've answered like 10 times और अगर 11th टाइम में आंसर नहीं दूंगी तो people will be like कि मिशा ने जवाब नहीं दिया इसको, हम्म। she's in trouble now, because she hasn't answered. तो I think it's also my own fault कि मैंने इतने एग्जैक्टली। आंसर दे दिए हैं कि अब अगर मैं ना दूं तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि नहीं इसने आंसर नहीं दिया. तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि देर आर टीचर्स हु आर गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम एंड इफ दे आर नॉट एबल टू आंसर दैट्स टोटली फाइन. ठीक है, दे कुड बी. या. मीशा, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है, बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, बिकॉज आई ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर एवरी वन एवरी टाइम। इवन रात के 2 बजे मैसेज आया, हैव टू रिस्पॉन्ड, जैसा आपने बताया कि आपको कुछ अंदर से हो रहा होता है कि आई हैव टू आंसर इट, और कुछ होना है। सो लेकिन ना ये आपके लिए लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करता है, जितना आपका सर्कल बढ़ता जाएगा ना, इट विल क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। सबसे पहले देखें, एक इंडिविजुअल आप खुद भी है ना, तो अगर आप लीडर पोजीशन पर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, टीचर हैं, फैसिलिटेटर हैं, वट, आप डॉक्टर ही हैं, आप डॉक्टर को हर वक्त देखें आपको पानी है। अब ये अगर वो करता रहेगा तो फिर अब वो सोएगा कब, ये अपनी फैमिली को टाइम कब देगा? सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके एक पैटर्न्स होने चाहिए, और हाँ, अगर आपने कोई सेट किया हुआ है तो उसमें फिर आप अवेलेबल हो। ये नहीं कि आपने जो सेट किया उसमें आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आप जब पैटर्न सेट कर लेंगे तो पीपल गेट टू नो। चूंकि मुझे ऐसा हुआ है और मुझे 1-2 साल लगे हैं इस पैटर्न को सेट करने के लिए, अपने मीटिंग्स के लिए, अपने, क्योंकि मैं तो मेंटल टॉर्चर में चला गया था कि एवरी टाइम मुझे जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना था। अगर नहीं करते तो लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, और लोगों की अजब अजब रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि जी हाँ. चेंज हो गए हैं, आप बात ही नहीं कर रहे, और एक अलग ही वो, फिर एक अलग आपको फील हो रहा होता है कि पीपल आर थिंकिंग बैड अबाउट यू। तो वो भी एक अच्छा हजम नहीं हो रहा होता आपको। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको फिर अपने जब सेट कर देते हैं तो लोगों को ट्रस्ट आता है, बिकॉज जब आप अवेलेबल हैं तो आप इतने अच्छे अवेलेबल हैं, तो उनको फिर आप ये बताते भी हैं कि इफ आई डिडंट रिप्लाई यू तो उसकी रीजन ये थी, तो आप अंडरस्टैंड करें कि हम लोग इस टाइम पर अवेलेबल नहीं होते, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो आप इस टाइम पे करेंगे हम अवेलेबल। अच्छा, जब वो चेक कर लेगा कि आपने जो टाइम दिया उसमें आप अवेलेबल हैं, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर आप फिर भी नहीं है तो फिर तो आप फिर बर्दाश्त करें उसके टैंट्रम्स को और सारी चीजों को। तो ये बड़ा जरूरी है ये। एग्जैक्टली. सो माय एडवाइस टू टीचर्स वुड बी कि अगर आया है, इवन इफ यू गेट इन ट्रबल डोंट आंसर हाँ, ऑल द टाइम. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि देयर आर टाइम्स के 12 बजे मैसेजेस आ रहे होते हैं and you're like यार अब तो सोने का टाइम था. Anyway, so any strategies that you have to bridge the gap between parents and teachers? यस, आई मेंशन्ड अर्लियर कि पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पीटीएम्स का होता था, बट पीटीएम्स में तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ शिकायतें लगा रहे होते हैं या उनकी शिकायतें सुन रहे होते हैं। बट व्हाट वी चेंज्ड, हम लोगों ने कुछ
टीचर्स के लिए इवेंट्स डिजाइन किए हैं, इवन पेरेंट्स के लिए हमने एक शुरू किया स्टार्टअप ओपन टॉक मीटअप के नाम से। ओपन टॉक मीटअप के नाम से पेरेंट्स हैव टू हम्म। कम टू द स्कूल, और वो उन्हीं चेयर्स पे बैठते हैं जहाँ उनके बच्चे बैठते हैं, और देन दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर चैलेंजेस एंड देयर सजेशंस, और सिर्फ वो बताते हैं और टीचर्स सिर्फ सुन रहे होते हैं, टीचर्स सिर्फ उनको इंगेज कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, कोई मूवी देखने में, कोई मोटिवेशन में, कोई खाने पीने में। सो उससे एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड हम्म। होता है, उससे अंदाजा ये हो रहा होता है कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है, टीचर्स का विजन क्या है, इदारे का विजन क्या है, और पेरेंट्स किस बैकग्राउंड के हैं, पेरेंट्स क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। हम तो किसी और अगर डायमेंशन में जा रहे थे एंड पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अस, तो वो एक बड़ा गैप था जो कि हल ही नहीं हो रहा था। तो लास्ट 6 मंथ से जब हमने हम्म। ये सेशंस किए हैं, इट क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव कल्चर, वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अब हर टीचर को अपने बच्चे से रिलेटेड चीजें पता है, हर टीचर को उसके पेरेंट्स और बच्चों से रिलेटेड चीजें काफी हद तक पता चल गई हैं, और उसी तरह से वो डिस्कस कर रहा है कि बच्चा किस टीचर को कैसे घर जाके बता रहा था, वो पेरेंट्स आके टीचर को बता रहे हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होकर टीचर्स के साथ पेरेंट्स इंडिविजुअली अब इन टच है, उसमें मेरा पार्ट ही नहीं है। मतलब टीचर को मैथ से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, इंग्लिश रिलेटेड है, अब हम्म। पेरेंट्स आर रिजॉल्विंग देयर इश्यूज विद द टीचर बड़ा कंफर्टेबल में, ये नहीं कि वो बैड में। अब वो दे आर नॉट वेटिंग फॉर द पीटीएम्स कि हम जाएंगे पीटीएम पे तो जाकर दुखड़े सुनाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। नाउ द ट्रस्ट इज बिल्डिंग, और उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। बट फिर वही बात कि वो एथिकल बाउंड्रीज का डिटरमिन करना ये बड़ा जरूरी था, वो हमने कोशिश तो की है। वो बता रहे हैं कि नॉट एवरी टाइम यू आर अवेलेबल, और हम्म। नॉट एवरीथिंग यू मस्ट लिसन, और उसका सोल्यूशन नहीं होता। हर चीज को सॉल्व आपने नहीं करना, वो कुछ जिम्मेदारियां डिफरेंट लोगों की भी होती हैं, आप ट्राई नहीं करें। सो इसके जरिए मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत वर्केबल है और प्रैक्टिकेबल है हमारे खास तौर पे कल्चर के अंदर, जहां पर हम डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोगों को डील कर रहे होते हैं। Another thing, लीडरशिप पे तो हमने बात कर ली कि sometimes communication नहीं है ये वो, but I also believe कि sometimes there are times when teachers also take advantage of the fact कि maybe there's a coordinator who just arrived, हम्म। for example, and the teacher has been there for years and years and years. और अब वहां पर teachers can also be taking advantage. हम्म। Like they could be overpowering the communication or, crossing that line as well. So, what do you think the coordinator should do in that situation? कि ये भी ना हो कि that teacher is so respected कि उस पे बात आ जाए कि यार coordinator is very rigid या So, what do you say about that? बहुत वैलिड और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्निंग आपने सवाल उठाया है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इदारों के अंदर मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि व्हेन यू ब्रिंग अ न्यू कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक लीड इन द इंस्टीट्यूशन, तो जो पुराना स्टाफ है दे फील सम इनसिक्योरिटी और रिजिडिटी, रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो उसमें फिर वही बात है कि इफ़ यू आर अ गुड लीडर, तो आप उस कोऑर्डिनेटर को पूरा ट्रेन करके लाए हैं कि हाउ के शुरू के दौरान में आपने लिसनिंग लीडरशिप की क्वालिटीज कैसे लेनी है, then you must adapt according to the situations, according to the needs of the teacher। टाइम लगता है, देखें, जब वो स्मार्ट इनफ है, वो रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, और वो उनको वैल्यू दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी एक काम लीडरशिप का। ये नहीं है कि आप सिर्फ कोऑर्डिनेटर को लाकर प्लेस कर रहे हैं, उसको किस तरह से बिफोर टाइम ट्रेन करके और आपने लाना। बिकॉज देखें, अगर आप एक सिस्टम चला रहे हैं, तो आप इन चीजों से, अगर अच्छे लीडर हैं जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, जो हम आइडलाइज भी कर रहे हैं, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो बिफोर टाइम ये वर्जन, ये चीजें, ये सब रेजिस्टेंस की चीजें उसको अवेयर करे। और वो कोऑर्डिनेटर, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो कोऑर्डिनेटर है तो उसको ये पता होना चाहिए। वो जिस कल्चर से आ रहा है, हो सकता है वहां कोई और कल्चर था, वहां कोई और सिस्टम था, हम्म। बट वो अगर आपके सिस्टम में आ रहा है, तो आप उसको बताएं कि यहाँ पर पुराने टीचर्स 20 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले भी हैं, 10 ईयर्स वाले भी हैं, दे आर वर्किंग, इनके सिनेरियोज ये हैं। तो बिफोर टाइम आप जब हायरिंग करते हैं, तो आप 1 मंथ की प्रोबेशन के दौरान में उसकी ये सारी ट्रेनिंग करते हैं, उसको सारा बताते हैं, एंड देन यू सपोर्ट द कोऑर्डिनेटर साइड बाय साइड कि इफ देयर इज एनी सच इशू, को रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो, कोई ऐसी अगेंस्ट आ रहा है, तो लेट मी नो हाउ टू हैंडल। फर्स्ट आप उसको इंडिपेंडेंटली बताएं कि लिस्टिंग क्वालिटीज क्या है, अडेप्टिव क्या है, फिर आपने मतलब कैसे उसको रिएक्ट करना है, कैसे आपने डाइवर्ट करना है सिचुएशंस को। सो दीज आर द थिंग्स जिसके जरिए मुझे लगता है कि आप एक कोलैबोरेशन करके और विद द पैस ऑफ टाइम एक स्मूथ वर्किंग चला सकते हैं। अदरवाइज तो ये तो ह्यूमन नेचर है
कि हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे, जो भी आपका चेक एंड बैलेंस स्टार्ट करेगा, जो भी आकर आपको एक नया फेस आएगा और वो आपसे इंक्वायरी करेगा, तो आप कहेंगे भाई आई एम हेयर फॉर 20 years, यू आर न्यू, आप कौन हैं, हम्म कैसे कर रहे हैं, तो थिंग्स विल गेट चेंज। उसका एक सिनेरियो है, आप उसको डिफरेंटली लेकर आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज दैट जी ब्रिज, ये जो गैप है सारा, लाइक द होल थिंग, इसके लिए व्हाट इज द लास्ट एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव, लाइक एन ओपन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ इट, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स एंड फॉर द लीडरशिप? मिशा, आई मस्ट से कि सबसे पहली चीज जो है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू बिलीव समवन, कि आप अगर अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी इदारे में भेज रहे हैं, दे मस्ट ट्रस्ट कि वो इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और टीचर्स अगर क्लासरूम में जा रहे हैं बच्चे के लिए, तो दे डेवलप दैट ट्रस्ट कि उनका बच्चा सेफ हैंड्स में है। और प्लस लीडरशिप ये ट्रस्ट रखे कि टीचर को जो चीज़ बताई गई है वो उसको जाकर अपनी कैपेसिटी में बेस्ट लेवल पर डिलीवर कर रहा है। और टीचर्स भी ये ट्रस्ट रखें कि जो लीडर है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीचर। जब ये ट्रस्ट की एक चेन डेवलप हो जाएगी ना, तो मुझे लगता है इसके साथ एक और चीज ऐड कर लें, दैट इज अ पेशेंस। कि बी पेशेंट, डू हम्म नॉट जज एब्रप्टली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऑर्डर्स मैनेजमेंट की तरफ से आया है, कोई पेरेंट की तरफ से सजेशन आया है, कोई फीडबैक आया है, दिस इज नॉट फाइनल। उसके मुताबिक आप देखें, रीथिंक, रीवैल्यूएट, एंड देन गो बैक टू द फील्ड और फिर एग्जीक्यूट करें। तो मुझे लगता है कि पेशेंस और ट्रस्ट के जरिए जो है वो थिंग्स विल गेट वेरी मच बेटर। और फिर ऑब्वियसली कि वैल्यू होना एक दूसरे को, कि आप जो भी डीलिंग्स कर रहे हैं उसमें एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट और वैल्यू है, दैट्स अ की एस्पेक्ट फॉर द बेटरमेंट। तो मेरी बहुत गुजारिश होगी तमाम लीडरशिप से, तमाम स्टेक होल्डर्स से, पेरेंट्स से, बच्चों से, कि डेवलप दैट एनवायरनमेंट दैट विल मतलब अल्टीमेटली बेनिफिट द कम्युनिटी एज वेल, जो कि हमारी एजुकेशन है। बिकॉज थ्रू एजुकेशन वी कैन चेंज द कम्युनिटी एंड डेवलप अ वेरी गुड कम्युनिटी जो कि हेल्पफुल रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत की एस्पेक्ट्स होंगे सब लिसनर्स के लिए, ऑल द फॉलोअर्स एज वेल। अनदर थिंग, फीडबैक मैंने नहीं देखा स्कूल्स में। हम्म। वन थिंग दैट आई लाइक, पुराने स्कूल में भी इन माय न्यू प्लेस एज वेल, कि फीडबैक नहीं देती टीचर्स टू द लीडर्स एंड लीडर्स टू द प्रिंसिपल अबाउट हाउ द ईयर वेंट। हम्म। या वो हेजिटेशन है, या लीडर्स ने वो स्टार्ट ही नहीं किया, लाइक दे, आई थिंक द लीडरशिप शुड हैव अ स्टार्टअप कि वहां पे एक बॉक्स पड़ा हो एंड टीचर्स कैन anonymously पुट फीडबैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एंड मिशा। देन टुगेदर, अगर बैरियर्स की बात हो रही है, अगर, हम्म। या मिशा, मैं इसमें ऐड करूंगा, जी वाई जी आप। एनॉनमसली, वाई एनॉनमसली ना, मतलब आपका ट्रस्ट ही नहीं है हम्म तो फिर आप एनॉनमसली क्यों कर रहे हो? इट मींस कि यू हैव अ फियर कि मतलब उसको किया जाएगा। मुझे लगता हम्म है कि इफ फीडबैक मस्ट बी गिवन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है कि फीडबैक इतना हम्म पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने बताया ना कि अगर पेरेंट्स एक फीडबैक दे रहे हैं टीचर के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में, तो इतना तो उनको ओपन हार्टेड होना चाहिए टू वेलकम दैट। वो कब होगा? जब आप उसको बिलीव भी कर रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं कि यार ये बेटरमेंट के लिए है। अगर स्टूडेंट कोई फीडबैक दे रहा है टीचर को, आप देखें कि हमारे यहाँ कोई पेरेंट्स अगर फीडबैक टीचर की कोई कोई भी लिमिटेशन है उसके बारे में है, तो कोऑर्डिनेटर का क्या होता है, ये ऊपर तक बात ना जाए, एक बैड इंपैक्ट जाएगा। वाई? ठीक है, कोऑर्डिनेटर की कोई लिमिटेशन है, वो मैनेजमेंट तक, ऊपर हाई अथॉरिटीज तक ना जाए, बिकॉज उसकी जॉब इनसिक्योरिटी हो जाएगी। तो अगर ये कल्चर है आपके दायरे में, तो हम्म इट मीन्स कि यू आर अ नॉट गुड कल्चर। तो आपको अगर ये डेवलप करना है कि फीडबैक वाकई होना चाहिए, बिकॉज वेयर यू वर लास्ट ईयर, वेयर यू आर राइट नाउ, ये तो इतना इंपॉर्टेंट। और ये जब तक फेयर नहीं होगा, जो हमने शुरू में बात की है, वो एथिकल नहीं होगा, तो आप मुझे बताएं कि फिर ना ट्रस्ट है ना बिलीव है, तो फिर तो सिस्टम बस चल रहा है। फिर आप किसी की बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, फिर हम्म यू आर जस्ट रनिंग विद द टाइम। यू आर नॉट डेवलपिंग एनीथिंग, यू आर नॉट एडिंग वैल्यू विद योर जो है वो क्वालिटीज इनटू द सिस्टम। आप टीचर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, हेड हैं, लीडर हैं, तो आप वैल्यू ऐड क्या कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर? तो सिस्टम में वैल्यू ऐड करनी है, तो आपको वो पॉजिटिव, हम्म एथिकल और वाकई फेयर बेसिस पर फीडबैक देना है। और इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगला बंदा उसको पेशेंटली एब्जॉर्ब भी कर सके, उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके। फिर जाकर मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा।
एग्जैक्टली anonymously मैंने इसलिए कहा बिकॉज सम मोस्ट टाइम्स इट यस, हैज टू बी anonymous. एग्जैक्ट. जैसे हमने जॉब इनसिक्योरिटी की बात की है, या इट कुड बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक फीलिंग्स हर्ट हो जाती है ना फौरन ही कोई चीज सुन ले. हम्म. तो डॉक्टर जेसिका, ये मैंने चीज बहुत सीखी है, एंड दिस इज समथिंग दैट इवन माय कोऑर्डिनेटर इन माय लास्ट प्रीवियस वर्क प्लेस, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, सेल्फ रिफ्लेक्शन. हम्म. आप चलो फीडबैक तो देना ही है, लेकिन अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप खुद बैठे एंड देन हम्म. यू थिंक अबाउट द होल थिंग, होल ईयर, कि आपने पॉजिटिव क्या किया है, आपने नेगेटिव क्या किया है, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड. वेरी ये गुड. उठा के हमारी कोऑर्डिनेटर हमसे लिखवाती नहीं, लाइक फॉर सेल्फ इवेल्युएशन. आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि ये चीज डॉक्टर जसिका ने भी बहुत ज्यादा हम्म. की है, एंड आई हैव अप्लाइड इट टू माई सेल्फ. और हम्म. मुझे ये पता है कि अगर मैं लीडरशिप वाली पोजीशन में जाऊंगी कभी, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई विल टेक विद मी. हम्म. कि कुछ तो नेगेटिविटीज होती हैं, दैट्स द पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, यू आर अ हम्म. ह्यूमन बीइंग, हम्म. यू विल हैव नेगेटिविटीज. प्लीज हम्म. ये अपने ईगो का पार्ट ना बना लिया करें कि नहीं मैं तो गलत हो ही नहीं सकता. हम्म. बी हम्बल, अंडरस्टैंड कि you're a human being, you can make हम्म. mistakes, reflect हम्म. on those mistakes. और इसमें एक चीज मेरी और ऐड क्लास कर के लें. इसमें एक चीज और ऐड कर लें कि हम एक दूसरे को एक चीज कहना शुरू करें. इट्स ओके, इट्स फाइन, हम्म इट हैपन्स, बट डू नॉट स्टॉप हेयर. कंटिन्यू योर हम्म जर्नी, कीप ऑन मूविंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट के लिए, टीचर के लिए, लीडर के लिए, किसी भी सेक्टर में, इवन हमारी अपनी लाइफ में. आपने इतनी अच्छी हम्म बात की है कि इट हैपन्स भाई, हो सकता है द वे लीडरशिप वांट्स नहीं हुआ वैसा. व्हाट डज इट मीन? एक हम्म फीडबैक आ गया, रिफ्लेक्शन मिल गई आपको. डू नॉट हम्म स्टॉप हेयर, कंटिन्यू विद न्यू एनर्जी. और ठीक है, इट्स ओके, मतलब इसको लर्न करें एंड देन आगे मूव ऑन करें. दैट शुड बी इन द सिस्टम एज वेल. ये एक एनवायरनमेंट होना चाहिए. एग्जैक्टली. तो आई थिंक यहाँ पे इस डिस्कशन को एंड करते हैं. इट वाज वंडरफुल वंडरफुल टू हैव यू. थोड़ी सेम सी है. रेमिनिसिंग भी कर ली इन आवर ओन एमफिल जो भी किया है. एंड एग्जैक्टली. देन ओवरऑल करियर में थोड़ी सी बात कर ली, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट लीडरशिप, व्हाट दे कैन डू टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. हम्म. आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम लोग टीचर्स की बात करते हैं कि टीचर की टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या है, हम्म. लेकिन एज अ टीचर हमें ये नहीं पता कि लीडर्स को क्या वर्कशॉप्स दी जा रही है, लीडर्स के हम्म. साथ क्या हो रही हम्म. है. हम्म. I think the teachers should be made aware, like they should be allowed हम्म. to participate in maybe a workshop जो leaders के लिए हो रही है. Maybe a teacher would like to participate in that. तो आपको पता चल जाएगा कि leadership कहाँ से आ रही है, where they're हम्म. coming from. I एग्जैक्टली. think we don't understand कि हम लोग किस किस एंगल से आ रहे हैं. हम्म. बिकॉज अगर लीडरशिप की बात करें तो अक्सर क्लासरूम एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लाइक हम्म. लीडरशिप का नहीं होता. हम्म. इनसाइड क्लासरूम टीचर का होता है, टीचर नोज कि पूरे डे में क्या हो रहा है, लाइक 10 मिनट्स में, इन 2 मिनट्स हम्म. एवरीथिंग कैन चेंज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लेसन ले रही हूँ और बच्चे बैठे हुए हैं, लाइक दे आर ऑल सिटिंग डाउन, और अगर वो लीडर आया है और उसी टाइम पे आया जब बच्चों ने उठे हैं, या बच्चों ने देव क्रिएटेड रकस, और उसी टाइम पे आ रहा है, दैट डज नॉट मीन कि टीचर पिछले 10 मिनट से यही हो रहा है. हम्म. इट वॉज जस्ट 2 मिनट्स अगो, एवरीबडी वॉज सेटल्ड. हम्म. यू केम एट अ टाइम व्हेन मे बी उनका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया, मे बी देयर सिटिंग कैपेसिटी उनकी खत्म हो गई है, तो मे बी द टीचर इज अलाउइंग देम टू वॉक अराउंड. हम्म. तो मुझे तो इस चीज पे बड़ी पड़ती थी. नहीं मीशा, आपने कि बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया. बिकॉज अगर एक लीडर खुद क्लासरूम से टीचिंग करके नहीं आया ना, तो वो इन इश्यूज के बारे में कभी नहीं जान पाता. और आपने जो सिचुएशन बताई है, ये तो एक बड़ी एक सिचुएशन है. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हाइल आई वेंट फॉर द ट्रेनिंग्स. तो टीचर्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता था कि जब मैं उनको बता रहा हूँ कि एक्टिविटीज के दौरान में, इट्स बैक 10 years बैक, मैं डिफरेंट स्कूल्स में जब जाता था एज अ ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहां पर जब आई आस्क टीचर्स कि जी आपकी क्लास के अंदर जो शोर है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो दे ऑल सेड कि सर दिस इज हम्म नॉट पॉसिबल. कि अगर हमारी क्लास में कोई शोर हुआ ना, तो मैनेजमेंट आई तो उन्होंने बहुत एक नेगेटिव जो है ना वो थॉट डेवलप करनी कि यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है. अब हो सकता है कि वो जो शोर हो रहा है, यस वो जो एंगेजमेंट हो रही है, वो किसी प्रोडक्टिविटी के लिए हो रही हो. अगर एक लीडर जो आया है,
और वो खुद उस प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ, तो वो अनअवेयर रहेगा। वो तो सिर्फ ये थिंक कर रहा है कि जी आपकी क्लास के अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे लीडर्स वो हैं राइट। जो कि अपने स्टाफ को पिलर्स समझते हैं अपने इदारे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। यस। और अगर वो वीकन होते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम वीकन होगा। तो उसका ट्रस्ट बिल्ड करना और उसकी जो पॉजिटिव इंटेंशंस हैं उस पर बिलीव रखना, मेरा ख्याल है कि दिस इज द अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ द लीडर, कि वो उसको रियलाइज कर रहा हो कि टीचर्स शुड बी वैल्यूड अलॉट। Exactly. So thank you so much for coming on this talk. It was really productive. A lot of points we covered Same here. here, Yeah. Misha. One thing I must add, I really appreciate you as well because ये जो आप एजुकेटर सर्कल शुरू किया है आपने, इट्स रियली कमेंडेबल। मुझे आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। यू आर एंगेजिंग। मैंने आपकी टॉक्स पहले वाली भी देखी हैं, दे आर वेरी मच प्रोडक्टिव। आई होप और विशेस मेरी आपके साथ हैं कि आप इसको पॉजिटिवली लेकर चलें फॉर द अवेयरनेस कैंपेन, फॉर द प्रोडक्टिव सिनेरियोज, फॉर द लीडर्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द कम्युनिटी। और आई होप कि तमाम पेरेंट्स, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लीडर्स जितने भी हैं वो इससे फायदा हासिल करें और इसको मोर प्रोडक्टिव बनाएं। एंड वेयर आई विल बी of any help, I'll be there for you as well, for support, for the vision, and very best wishes for you and for your initiative. Thank you very much for Okay. inviting. Thank you. Thank you very much. Take care. Thank you for Allah. coming. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.